Be the change you want to see in this world and feel proud to be an Indian. A very good morning to all of you. On this auspicious occasion of Republic Day, I, Maniha Fatima, And Krishna Sharma heartily heartily welcomes you all to celebrate this momentous day with us. Unfortunately, we could not gather here to celebrate our Republic Day, which is a great and auspicious occasion for all of us, but we hope that things get better soon. Republic Day is considered as a national festival and we celebrate it every year on 26th of January. It is an important day for the country's citizen because we got our constitution on this day. Our great freedom fighters fought a lot for Purna Swaraj in India. They sacrificed their lives so their future generation doesn't have to struggle. Moving forward, let's begin today's celebration. Now, let's continue our program with a song by Muhammad Ehtisham Ahmed of class 6B. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज़ वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़बाना माटी पे मर मिट जाना, ज़िक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा पर। Thank you, Ehtisham, for a melodious song. I would like to call our head boy Pranjan Srivastav for a speech on this auspicious day. Freedom in mind, strength in our worlds, pureness in our blood, and pride in our souls. Let's salute our heroes who sacrificed their life to bring this glorious day to India. Happy Republic Day. On 26th of January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th of August 1947 from the British rule. However, our constitution came into force on 26th of January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizen of the country holds the supreme power to elect the representatives. Constitution gives all of us the same right despite the difference of color, religion or language. In the past 73 years, our country has gone through many changes. The command of the country came into the hands of the people and India became a democratic country. Along with lots of development, there are some pitfalls that came along the way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We should take pledge to find solution to these problems so that our country becomes the best place to live on earth. Thank you. Jai Hind. Thank you, Pranjal, for giving an informative speech. Now, I would like to call Bhumi Sharma of class 12A for a solo dance.
Constitution of India given by Sir Bhim Rao Ambedkar. Now I am presenting Dr. Bhim Rao Ambedkar. Life should be great rather than long. They cannot make history who forget history. Be educated, be organized and be agitated. We, the people of India, Having so early resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure, to all its cities, justice, social, economic and political worthy liberty of thought, and expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote them of fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity. and the integrity of the motion. Constituent Assembly, 26th day of November 1949. do hereby to adopt enact, and to give yourself. Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, dear students, for an awesome performance. I would like to call our rising stars as our freedom fighters. I am playing the role of Rani Lakshmi Bai. उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया. धन्यवाद. Today I am dressed up as Bhagat Singh. लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगा जाएगा. मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा. इस कदर वाकिफ है मेरे कलम से, मेरे जज्बातों से. अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है. क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है. मेरा धर्म देश की सेवा करना है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां. हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. मैं बेगम हजरत महल हूँ. मैं बीते ज़माने की वो तारीख हूँ जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है. मैं अवध के आखिरी सुल्तान वाजिद अली शाह की बेगम हूँ. सन 1857 में जब भारत ने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी तो मैंने भी उसमें अपना योगदान दिया था और अंग्रेज़ों से लोहा लिया. लेकिन बाद में मुझे नेपाल की शरण में जाना पड़ा. सन 1879 में नेपाल के काठमांडू में मेरी मृत्यु हो गई. Few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose born on 23 January 1897 in Cuttack. He was popularly known as Netaji. Subhash Chandra Bose was a great nationalist and a freedom fighter. He fought for India's freedom with bravery. He was also a member of the Indian National Congress. Jai Hind. मैं आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था. वह एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे. इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है. थैंक यू. I am playing the role of Gandhi ji. I am father of the nation. I started Satyagraha movement and Dandi March. I believe in non-violence, truth and peace. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम. थैंक यू. Thank you, little champs, for your efforts. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है. आइए इससे जुड़ी एक कविता सुनते हैं. मैं यश प्रकाश सिंह कक्षा 9 का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है देशभक्ति. देश प्रेमी कहूँ या सरफरोश कहूँ, देश प्रेमी कहूँ या सरफरोश कहूँ, दिया बलिदान जिन्होंने, क्या मैं उनके बारे में कहूँ, क्या मैं उनके बारे में कहूँ. छोटी सी उम्र में इस देश को जिन्होंने अपना सब कुछ मान लिया,
छोटी सी उम्र में इस देश को जिन्होंने अपना सब कुछ मान लिया, हाँ, जवानी में इन्हीं वीरों ने था बलिदान दिया, इन्हीं वीरों ने था बलिदान दिया। देश के लिए जो हंसते रोते थे, देश के लिए जो हंसते रोते थे, वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होते थे। वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होते थे। देशभक्ति क्या होती है इन्होंने ये समझा दिया। देशभक्ति क्या होती है इन्होंने ये समझा दिया। फांसी को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। सच के साथ थे वो, झूठ का पलड़ा भी झुका दिया। सच के साथ थे वो, झूठ का पलड़ा भी झुका दिया। देश के हर व्यक्ति को देशभक्ति क्या होती है ये पढ़ा दिया, देशभक्ति क्या होती है यह पढ़ा दिया। जय हिंद। धन्यवाद आपके विचारों के लिए। Now I would like to call our head girl Asta Agarwal to express her views on this day. शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मैं आस्था अग्रवाल कक्षा 12 की छात्रा आज आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, परंतु इतने विशाल भारत देश पर नियंत्रण पाने के लिए उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में तैयार स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान तैयार किया गया, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से इस संविधान को स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तब हमारा देश पूर्ण रूप से सर्वत्र गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी संविधान के कारण आज हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत प्राप्त हुई है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन सभी को हम दिल से याद करते हैं और उनका आभार मानते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी आज हमारे देश के वीर जवान अपने देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम उनको शत-शत नमन करते हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम सभी एकजुट होकर अपने देश प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना से ओतप्रोत रहें और हमारे शरीर के रोए रोए से यही आवाज आए कि करे सलाम इस तिरंगे को जो हमारी शान है, कि करे सलाम इस तिरंगे को जो हमारी शान है। सदा से रखना ऊंचा इसका जब तक शरीर में जान है, सदा से रखना ऊंचा इसका जब तक शरीर में जान है। इसी भावना के साथ एक बार आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you Asta for a wonderful speech. Next, I would like to call class 12 students for a group dance. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना
के हैं